Hi, welcome again. So in this lecture, we'll be actually discussing something called object-oriented programming. So object-oriented programming is actually a paradigm which we'll be using to write good software. Okay. So most of the modern programming languages, they are object-oriented and they use this paradigm as the base to build upon that. Okay. So what exactly is object-oriented programming and why do we want to use it? See, so in real life, we are surrounded by objects. I'm sitting on a chair, I have a table in front of me, I have a laptop. So all these things are objects, right? And I don't think we should stop there. We can even say that our colleagues are objects, right? Like we deal with a lot of colleagues, we deal with humans. So we can call each and everything that we deal with as an object. Now what we want is we want our code, our software to be as close to the real life as possible. Because if code is going to be very, very similar to real life, it's actually going to be much easier to write code. When you will read your code, it will feel like that these are two objects that are interacting with each other the way they do it in real life. So हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो कोड है उसके अंदर भी यही सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में किसी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो जैसे वो रियल लाइफ के अंदर करते हैं एग्जैक्टली द सेम वे. दैट्स व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो हमारे सिस्टम के अंदर भी हमारे कोड के अंदर भी ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से जैसे वो रियल लाइफ में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर a college has a lot of teachers, a lot of students, a college has classrooms, right? A college has courses. So each of these individual things can be called objects and they are interacting with each other. If I'm building a software that is making a college management system, basically if I'm making a software which is college management system, then I want my software, my code to have all these objects that include that are part of the college management or that are part of the college. Okay. So now what is an object? What is a student or what is a teacher? Each of these have some properties. Like every student will have a name, every student will have a course that they are part of, every student will have an age and stuff like that. What about teacher? Teacher will have a name as well. A teacher will have some qualification. A teacher will have maybe some desk allocated to that teacher in the college premises, right? So हर ऑब्जेक्ट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, रियलिटी में होती है. भाई चेयर है, चेयर की लेंथ है, चेयर की विड्थ है, चेयर की हाइट है, चेयर का वेट है, ये सब चेयर की प्रॉपर्टीज हैं. चेयर कितना मैक्सिमम वेट हैंडल कर सकती है, ये चेयर की प्रॉपर्टी है. सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. वी वांट आवर सॉफ्टवेयर टू हैव दैट एबिलिटी एज वेल. हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी, हमारे कोड के अंदर भी जो ये हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके पास भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. Along with properties, every object has some functionality as well. For example, मेरे सामने जो एक कैमरा है, इसकी एक फंक्शनैलिटी है कि ये रिकॉर्ड करता है. एक टीचर की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो टीच करता है, राइट? सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम फंक्शनैलिटी एंड सम प्रॉपर्टीज. सिमिलरली हमारे कोड के अंदर भी हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उनकी कुछ फंक्शनैलिटी हो और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हो. ओके, सो ठीक है, थोड़ा सा और इसके ऊपर, इसी थॉट के ऊपर थोड़ा सा और देखते हैं. सो लेट्स से माय कॉलेज हैज 10 students. Very small college. I have 10 students. Now in code, when I'll be creating these 10 students, each of these students will have some property. हर स्टूडेंट का एज होगा, नेम होगा एंड रोल नंबर होगा. तीनों चीजें होंगी, एज, नेम एंड रोल नंबर, तीनों की होंगी. So now you have every student has these three properties.
So one option is when I'm creating my student 1, I'll say यार student 1 की ना ये तीनों properties हैं. फिर student 2 बनाऊंगा तो मैं दोबारा बताऊंगा यार student 2 की ये तीनों properties हैं. Every time a student is make, I'll say यार student का age होता है, roll number होता है और नाम होता है. That's not a very efficient solution. We don't want to do that. Instead what we want is, हम एक जगह पे टेम्पलेट बना के छोड़ दें. अच्छा स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट होता है उसकी एज होगी, उसका रोल नंबर होगा एंड उसका नाम होगा. Now you want to create a student, you want to create student 1. Let's use this template to make a copy and you get your first student. You want to create another student? Let's make another copy of this and you get another student. So हमने एक blueprint या एक template बना के रख लिया है. This is a blueprint or a template which we are going to use to create these actual student objects. ये object नहीं है, ये student नहीं है कोई, ये student बनाने का formula है. ये student बनाने ना तो ये सब चीजें डालनी पड़ेंगी उसके अंदर. और स्टूडेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसकी एक कॉपी बनाओ, स्टूडेंट बन जाता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इस टेम्पलेट को क्लास कहते हैं. दिस इज अ क्लास. दिस ब्लूप्रिंट दैट वी हैव, जिसको यूज करके हम एक्चुअल स्टूडेंट्स बना रहे होंगे, इनको हम क्लास कहते हैं. सो दिस इज अ क्लास. ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल इंस्टेंस विच आर एक्चुअली अ स्टूडेंट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. सो हमारे पास क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, एंड उस स्टूडेंट क्लास को यूज करके हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं. बहुत सारे, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ओके, ठीक है. सो अब फटाफट से कोड में करके देखते हैं. एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, उसमें सारी प्रॉपर्टीज डालते हैं, एंड देन वील सी एक्चुअल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं. ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं. चलो लेट्स सी. So I'll quickly create a new project. Just 1 second. Hopefully I'll be able to do that. I'll create a new Java project. Let's call it object-oriented programming. Right? Finish. So as we have discussed before, what we are going to do is we are going to create a new package as well. Okay? So let's call it classes and objects. एक पैकेज बना लेते हैं. नहीं, पैकेज नेम ऐसे नहीं बनाना होता ना. पैकेज नेम कैसे बनाना होता है? लोअर केस से बनाना चाहिए. That's what is recommended. So underscore objects. Okay, so we have a new package. Now let's create a new class. ऐसे बनाते हैं ना नई फाइल, class, new class. That's exactly what we were doing so far as well. हम एक नई क्लास बनाना चाहते हैं. जावा में everything has to be object oriented. Every code has to be written within a class. ठीक है, चलो अभी क्लास बनाते हैं. हमें कौन सी क्लास बनानी है? स्टूडेंट क्लास बनानी है. अभी डिस्कस किया ना हमने, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर उसको यूज करके हम एक्चुअल स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास. मेन इंक्लूड नहीं करते, अभी देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो. लेट्स फिनिश. सो वी हैव आवर स्टूडेंट क्लास यार. हमारी स्टूडेंट क्लास बन चुकी है. यू वांट एवरी स्टूडेंट टू हैव few properties. अभी के लिए काम करते हैं, नेम एंड रोल नंबर डालते हैं, सिर्फ एज रहने देते हैं. नेम एंड रोल नंबर, ये दो प्रॉपर्टीज डालते हैं. The way to create properties for a student class is basically you can just write string name int roll number. ये global variable नहीं है. Don't think of them as global variables. These are basically properties that every student is going to have. We are creating a student class and every student is going to have these two properties. हमने अभी डिस्कस किया था ना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना,
एवरी स्टूडेंट विल हैव दीज प्रॉपर्टीज. सो हम इसमें से एज नहीं ले रहे हैं, हम रोल नंबर एंड नेम ले रहे हैं. ये दोनों प्रॉपर्टीज हम अपने पास रख रहे हैं. So every student will have a name and a roll number. In itself, this is a complete student class. हो गया. अब हम स्टूडेंट बना सकते हैं. स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं अभी. जो भी स्टूडेंट बनाएंगे उसके पास एक नेम होगा और उसके पास एक रोल नंबर होगा. ठीक है. Let me create a new file. I'm going to call it student use. ठीक है, स्टूडेंट को यूज करेंगे. इसके अंदर मेन इंक्लूड कर लेते हैं, मेन बना लेते हैं इसमें. Now, if you remember the way you used to make scanner, कैसे बनाते थे स्कैनर? स्कैनर कैसे बनता था? यही करते थे हम. ठीक है, स्कैनर बन जाता था. स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड हम कुछ दे देते उसको ब्रैकेट के अंदर एंड हमारे पास स्कैनर बन गया था. एंड इफ यू रिमेंबर अगेन दिस लाइन जो हमने ऊपर लिखी हुई है, import java.util.scanner, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमारा सिस्टम कहता है अरे स्कैनर क्या है, मुझे नहीं पता स्कैनर क्या है. सो इसलिए हमने क्या किया था, हमने ऊपर इंपोर्ट कर दिया था बिकॉज उस जगह पे स्कैनर लिखा हुआ है एंड हमारा सिस्टम उस जगह से स्कैनर को ले आता था. फाइल के अंदर बेसिकली हम स्कैनर यूज करवाते थे. जिस तरह से स्कैनर बना रहे थे तुम एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्टूडेंट बना सकते हो. न्यू स्टूडेंट, ब्रैकेट में कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो. वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट स्टूडेंट. क्या सिंटेक्स है? स्टूडेंट बनाना है तो स्टूडेंट वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू, नया स्टूडेंट बनाना है, न्यू जो भी क्लास का नाम है. क्या है क्लास का नाम? स्टूडेंट है, ब्रैकेट लगा दो, तुम्हारा स्टूडेंट बन गया. एक और बना लेते हैं. स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. थोड़ा एक बार ध्यान से देखते हैं इस लाइन से होता क्या है. ओके, लेट्स बी, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस. थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस लाइन से होता क्या है. सो व्हाट डिड आई राइट? स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. ये लिखा ना हमने. सो बेसिकली व्हाट न्यू स्टूडेंट डज इज इट क्रिएट्स अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फॉर यू. एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया एंड हमें इसका एड्रेस मिल जाता है. स्टूडेंट s1, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट हैपेंस फॉर नॉन प्रिमिटिव्स, s1 इज नॉट द स्टूडेंट. s1 इज अ प्लेस जहां पे हम स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. न्यू स्टूडेंट से हमें ये एड्रेस मिलता है और हम ये एड्रेस यहां पे स्टोर कर लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट दिस लाइन इज डूइंग इज, लेट मी जस्ट रिपीट अगेन. Just one second. So basically what this line is doing here is, this line is creating two memory spaces. One where you are getting the actual student. Another memory space which we are calling S1, which is actually going to store the address of the student. ये स्टूडेंट बन गया, ये मेमोरी स्पेस बन गया, इस मेमोरी स्पेस में हमने स्टूडेंट का एड्रेस डाल दिया. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. एक बहुत सिंपल सा तरीका इसको टेस्ट करने का क्या है, स्टूडेंट को प्रिंट करके देखते हैं. लेट्स ट्राई टू प्रिंट S1. So when you print it, it's actually saying, hey, this is a student which is present at this memory address. इस memory address पे एक student रखा हुआ है. So S1 is not the student. S1 is basically this address. हम S1 print करें तो address print हो रहा है. ठीक है, ये हो रहा है exactly. Okay, that's fine. So, ठीक है, student बन गया.
स्टूडेंट का एड्रेस हमारे पास S1 में आ गया। अब क्या करें, मुझे स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर सेट करना है। लेट्स से द स्टूडेंट नेम इज अंकुश एंड आई वांट टू सेट द रोल नंबर एज वेल। सो एक स्टूडेंट के अंदर की अगर तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, S1.name इज इक्वल टू अंकुश। सो हमने नाम सेट कर दिया। सिमिलरली हम रोल नंबर सेट कर सकते हैं। मैंने रोल नंबर सेट कर दिया 123। हमने रोल नंबर सेट कर दिया है 123। ओके, so you are able to access the properties within the student like this। डॉट लगाएंगे, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है वो कर लो। वन थिंग यू नीड टू नोट हियर इज, स्कैनर यूज करा था तो हमें क्या करना पड़ा था, बताना पड़ा था स्कैनर कहां पे है। स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, हमने तो लिखा नहीं कहीं पे भी इंपोर्ट, हमने कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं किया इंपोर्ट क्या करना है क्या नहीं करना। सो वी बेसिकली did not have to write an import statement for student। स्कैनर के लिए लिखनी पड़ी थी, ये क्या बात है। So basically ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर है दोनों, विद इन द सेम पैकेज यू डोंट हैव टू राइट इंपोर्ट। अगर ये स्टूडेंट डॉट जावा किसी और पैकेज के अंदर होती और मेरे को इसमें लाना होता तो मेरे को इंपोर्ट लिखना पड़ता। अभी के लिए मुझे इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों के दोनों सेम पैकेज में, अलग अलग पैकेज में होते तो फिर नहीं हो पाता। ओके, just to test it, let's quickly create a new package। एक नया पैकेज करा देते हैं, let's call it temp। ठीक है, ऐसे ही बना रहे हैं, बस temp पैकेज है। एंड इसके अंदर हम एक और क्लास बनाते हैं, student use2। ये बना लेते हैं, मेन इंक्लूड कर देते हैं। Now here if I try to write student s is equals to new student, स्पेलिंग तो ठीक करनी ही पड़ेगी। student s is equal to new student, it's giving me an error। it's basically saying student cannot be resolved to a type। it's basically saying कि मेरे को पता ही नहीं कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा है, क्या है क्या नहीं है ये। सो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए जो भी हमारा वो पैकेज का नाम था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट को तुम इंपोर्ट कर लो। अब बिकॉज तुमने उसको इंपोर्ट कर लिया है, नीचे इसको पता है कि हाँ स्टूडेंट तो एग्जिस्ट करता है। ये वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ और किसकी बात करूंगा, सो मैं आप स्टूडेंट को यूज कर पा रहा हूँ। सो विद इन द सेम पैकेज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आउटसाइड द पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, विद इन द सेम पैकेज करने की जरूरत नहीं है। सो एज वी हैव सीन, we have created a student class which has few properties and we have created a student object using that class। so इससे क्या हो रहा है, न्यू स्टूडेंट से, जैसे मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारी टेम्पलेट बन चुकी थी, न्यू स्टूडेंट कर रहे हो तो उस टेम्पलेट की कॉपी बन रही है, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने S1 में स्टोर कर लिया। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो हम ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज आ गई है। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम प्रिंट भी कर सकते हो। लेट्स से आवर सेकंड स्टूडेंट इज मनीषा एंड लेट्स से मनीषा's रोल नंबर इज 121। ओके, सो जैसे हम सेट करने के लिए एक्सेस कर पा रहे हैं ऐसे ही तुम स्टूडेंट 2 का नेम प्रिंट करेंगे तो मनीषा प्रिंट होगा, स्टूडेंट 1 का नेम प्रिंट करेंगे तो अंकुश प्रिंट होना चाहिए। So let's try to print this। So student 1 का name is Ankush, student 2 का name is Manisha। So what I'm trying to say here is when you have created 2 students, they have their own name। अपना अपना नाम है, इसकी ये प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी ये प्रॉपर्टी अपनी है, इसने अपना नाम स्टोर किया हुआ है, इसने अपना नाम स्टोर किया हुआ है, इसने अपना रोल नंबर स्टोर किया हुआ है, इसने अपना अलग से रोल नंबर स्टोर किया हुआ है। हमने जो स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखा हुआ था कि एक स्ट्रिंग चाहिए नेम और एक इंट चाहिए रोल नंबर,
इनकी ऐसी की ऐसी कॉपी बन रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहला स्टूडेंट बनाने के लिए कॉपी बन रही है, दूसरा स्टूडेंट बनाने के लिए भी कॉपी बन रही है। ओके, ग्रेट। I'm going to clear this off. That sounds good.